بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پوری دنیا میں ایک بات بہت ہی زیادہ مشہور ہے کہ جنہیں لاہور نہیں ویکھیا وہ جمیا ہی نہیں، بالکل ایسے ہی ہے۔ آپ کے سامنے جو مناظر نظر آ رہے ہیں یہ لاہوریوں کے کھلے دل کی نشانی ہے۔ آج ہم آپ کو سیر کروائیں گے لاہور کے قدیم ترین بلڈنگز، عمارتیں اور بہت ساری ایسی چیزیں جو آپ نے آج تک نہ دیکھی ہوں۔ تو میرے ساتھ موجود ہیں رانا ابو بکر صاحب، جن کا لاہور کا وزٹ تھا اور مجھے ساتھ لے کے آئے ہیں۔ تو آج ہم بھی آپ کو آغا خان کی چائے بھی پلوائیں گے، لاہور کی سیر بھی کرائیں گے۔ تو مائک دے رہا ہوں میں اپنے بھائی رانا ابو بکر صاحب کو۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ تو سمیع بھائی اور ہم کوشش کرتے رہتے ہیں کہ آپ کو مختلف جگہوں کی سیر کروائیں، اور آج ہم نے وزٹ کیا ہے دلی گیٹ جو ہمارے لاہور میں ہے، اور ہم ریلوے اسٹیشن کی طرف سے آئے ہیں اور جو ہے آگے ہم دلی گیٹ کی طرف آئے، اور دلی گیٹ میں اس وقت ہم موجود ہیں۔ اور یہاں پر ایک کنواں آپ کو نظر آ رہا، وہ ایک کنواں ہے جس کا نام وینا ناتھ ہے، اور یہ مغلیہ دور میں بنا اور شاہ جہان صاحب کے دور میں بنا۔ تو ان کے ایک صوبے دار تھے جو جس کا نام حکیم علیم الدین المعروف وزیر خان تھا۔ انہوں نے یہ کنواں 1635 میں تعمیر کروایا اور اس کو وقف کر دیا کہ لوگ وہاں پر پانی پیتے تھے، اور چاروں ہی طرف اس نے دکانیں بنوائی اور 4 دروازے لگائے، اور وہ ایک بہت اچھا پوائنٹ بنا جہاں پر لوگ اکثر اوقات آ کر بیٹھتے تھے۔ خوبصورت نظام بنا۔ انہوں نے اپنے ہی دور میں بہت سے ایسے کام کیے، جیسا کہ ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے۔ ایک مسجد بھی بنائی جس کا نام وزیر خان کے نام سے ہی مسجد بنائی گئی، اور یہاں پر یعنی کہ انہوں نے بہت اچھا کام کروایا، آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے۔ اور اس کے اندر آج بھی اتنی ہی اپنی خوبصورتی کا یہ شاہکار ہے کہ آج آپ کو دیکھیں کہ اس کی اینٹیں، اس کی بنوائی، اس کا پورا انداز، اس کا وہی آج بھی ماشاءاللہ وہاں پر لوگ آج بھی مستری، اگر کوئی ٹوٹ پھوٹ ہوتی رہتی ہے تو وہاں پر مستری وغیرہ کام کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح یہ ہے کہ وزیر خان جو مسجد بنی، یہ کنواں بنا، تو بعد میں پھر یہ ہوا کہ وہاں پر دوسرے پر رنجیت سنگھ کا دور آ گیا، سکھوں کا دور آیا، تو اس کے نقشے تھوڑے تھوڑے چینج ہوتے رہے۔ یعنی کہ میں آپ کو تھوڑا سا اس میں سمجھانا چاہوں گا کہ سکھوں کا دور آیا تو انہوں نے یہ دکانیں وغیرہ مسمار کر دیں اور یہ دکانیں ختم کر دیں، اور وہاں پر بیٹھنے کا نظام بنا لیا۔ تو پھر جب دور آتا ہے رنجیت سنگھ صاحب کا، تو وہ 1799 یعنی کہ 1799 میں وہ 1839 تک کا ان کا دور رہا، اور وہاں پر ایک حویلی بھی تھی، بہت بڑی حویلی تھی۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ کو اس کی بھی سیر کروائیں گے۔ تو اس حویلی کے اندر یہ تھا کہ ان کا پورا عوام جو دفتری امور تھے، دفتری معاملات تھے، وہ سارے کے سارے اس کے اندر رکھے جاتے تھے، اور وہاں پر لوگ بیٹھتے تھے، لوگوں کے کام کاج کیا کرتے تھے۔ اسی طرح یہ پورا ایک سسٹم چلتا رہا، تو دروازے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے۔ آج بھی وہاں پر دربار بھی ہے اور مسجد بھی ہے، اور وہاں پر لوگوں کے آنے جانے کا سسٹم بھی ہے۔ یعنی کہ آج بھی وہ اتنا 388 سال کا وقت گزرنے کے بعد بھی وہ بلڈنگ آج بھی موجود ہے۔ یعنی کہ جو انہوں نے بنایا تھا اسی لیے بنایا کہ لوگ وہاں پر آئیں گے، پانی پئیں گے، لیکن ہماری بد نصیبی یہ کہ آج وہاں پر وہ نشانات تو ہیں لیکن وہاں پر پانی موجود نہیں ہے۔ تو اسی طرح لاہور میں جب ہم جاتے ہیں وہاں پر ہماری ایسی بلڈنگیں موجود ہیں کہ جس کو دیکھ کر دل خوش ہوتا ہے۔ مغلیہ خاندان تو چلا گیا، تو مغلیہ خاندان نے ساری اپنے دور کے اندر جو ہے بلڈنگیں بنائی، تاج محل بنا دیا، قلعے بنائے، مسجدیں بنائی، لیکن آج وہ ہم لوگوں کے درمیان میں نہیں ہیں۔ ان کا پورے خاندان کا کوئی بھی ایک فرد ہمارے درمیان میں نہیں ہے، لیکن ان کے جو بنائے ہوئے شاہکار، ان کی مسجدیں، ان کے جو انداز ہے، وہ آج بھی ہمیں بتاتے ہیں کہ انہوں نے یہ سوچا تھا کہ شاید ہم آنے والے ہمارے دور میں ہماری نسلیں یہ حکومتیں کریں گی، لیکن بد نصیبی ان کی نااہلی یا ان کا کچھ ایسا سلسلہ جو میں ان پہ بیان نہیں کر سکتا، جس کی وجہ سے آج ان کی نشانیاں موجود ہیں۔ لوگ کتابوں میں ان کا ذکر کرتے ہیں لیکن وہ آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہے۔ کچھ لوگ ان کو اس حوالے سے تو یاد کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اچھے انداز میں یاد کرتے ہیں، کچھ ان کو نیگیٹو انداز سے بھی لوگ یاد کرتے ہیں کہ دیکھیں ہم دوبارہ اس جگہ سے نکل کر
अब दोबारा जो मस्जिद की तरफ आए, जो वज़ीर खान मस्जिद थी उसके हवाले से सारा जो तहरीर है इसके ऊपर लिखी हुई है, ये बोर्ड के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखें उसी वक्त का ये जो आपको फ़र्श नज़र आ रहा है और उसकी बनाई, उसका अंदाज़, ये पूरा वहाँ पर लोगों का बहुत आना जाना, सर्दी हो गर्मी हो, यहाँ पर लोगों का बहुत आमदो रफ्त है। और माशाल्लाह यानी कि आज भी जो हमारे हुकूमत के लोग हैं वो वहाँ पर काम कर रहे हैं। यानी कि अगर कोई भी चीज़ समय भी टूटती फूटती है, जी जी, कोई चीज़ ख़राब होती है तो उसकी काम हो रहा होता है और वहाँ पर कोई टिकट नहीं है कोई। अब देखें इसकी दीवारें, आप देखें कि मेरे ख़्याल में ये 20 फुट से मोटी मोटी दीवारें इन्होंने बनाई हैं। ये सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ से ऊपर चढ़ते हुए ये आपके सामने नज़र आएगा, ये मस्जिद है। समी भाई ये देखें आप इसके बारे में आप थोड़ा सा बात करेंगे, ये बात करें समी भाई से। जी दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा ये मस्जिद वज़ीर ख़ान वही मस्जिद है। पिछले दिनों में एक बड़ा स्कैंडल चला था कि सबा कमर और बिलाल जो एक सिंगर हैं, इन्होंने यहाँ पे आके कोई गाना वाना शूट किया था और कोई डांस वगैरह भी किया था, जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान में इस बात को बड़ा मलाम किया गया था कि ये मस्जिद का एक तकद्दुस होता है, तो उनको यहाँ पे आकर नाच गाना ढोल ढमक्का ये नहीं करना चाहिए था। तो ये वही सीढ़ियाँ हैं जहाँ पे उन्होंने आके प्रोग्राम किया था, अपना जो भी था उनका गाना शूट हुआ था, ये वही जगह है। लेकिन ये मस्जिद के अहाते से बाहर की चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि हम मुसलमान हैं और हमारा जो हमारे दिलो जान से जो वाबस्तगी है, जो जज्बाती वाबस्तगी है, वो इस बात की इजाज़त नहीं देती कि जो मस्जिद का तकद्दुस है उसको हम पामाल करें। तो ये भी बात ऐड करना ज़रूरी था। तो आप ये देखें, ये जो मस्जिद बनाई गई है, ये मुगलिया जो ख़ानदान है या उस टाइम की जो तर्ज़ तामीर है उसका एक पूरा शाहकार है। यहाँ पर जिस तरह से ये सारा हाथ का ही काम है, कशीदाकारी जो हुई हुई है, यहाँ पे पेंट हुआ हुआ है या लकड़ी का जो काम हुआ हुआ है, बारीक ईंटों का जो काम है, ये वही है जो उस दौर का आज तक चला आ रहा है और कायम और दायम है। तो राना साहब, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने यहाँ पे देखा है जो कुएँ हमने अभी दिखाया है, या मस्जिद की बात करें तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी इनकी केयर नहीं की जा रही, टूट फूट का शिकार वैसे हो रही हैं और डे बाय डे ये अपने ज़वाल की तरफ जा रही हैं। इनकी केयर उस तरीके से या रिपेयरमेंट उस तरीके से नहीं की जा रही। अब ये आप सामने देखें, जगह जगह से पेंट भी उखड़ा हुआ है और यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शन भी दी गई हैं कि डिहाइड्रेशन की सूरत में बरसात के मौसम में जो गर्मी से होता है वो भी इंस्ट्रक्शन भी हैं। लेकिन यहाँ पे आने के लिए या जो लोग आते हैं तो उनको जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये हमारा विरसा है, ये हमारी जायदाद है, ये हमारा ख़जाना है। हमें चाहिए कि इसको हम अपने आने वाली नस्ल तक महफूज रखें। दुनिया में 2-2, 3-3 हज़ार साल पुरानी बिल्डिंग्स अब भी वैसे की वैसी कायम और दायम हैं, जबकि ये जो लाहौर है ये पूरी दुनिया का एक हिस्टोरिकल पॉइंट है और पूरी दुनिया से सयाह यहाँ पर सियाहत के लिए आते हैं। ख़ुसूसी तौर पर आप देखें, जब पार्टीशन हुई तो इंडिया के साथ जो हमारे मरासिम थे और अब भी हमारे बहुत सारे रिश्ते वहाँ पर जुड़े हुए हैं, बहुत सारे मुसलमान वहाँ पर रहते हैं। तो ये इंडिया और पाकिस्तान या हिंदुस्तान की जो तर्ज़ तामीर है उसका एक शाहकार है। ऐसे शाहकारों को ज़िंदा रहने चाहिए। अगर ये चीज़ें ज़िंदा रहती हैं तो हमारी जो राना साहब जो रिवायात हैं वो ज़िंदा रहती हैं। तो मेरा जो हुकूमत से जो दोस्त देख रहे हैं तो उन सब से रिक्वेस्ट यही कि हुकूमत अपना काम करे और ये लोग जहाँ पे जो विज़िटर लोग जाते हैं उनको चाहिए कि वो थोड़ा सा सफाई का ख्याल रखें। ये लोग आते हैं यहाँ विज़िट करते हैं तो इन्होंने रैपर वहीं फेंक देने हैं, बिस्किट खाएं उसके रैपर पड़े हैं, जूस पिया है वो फेंक दिया है, तो हम खुद भी हिफाजत नहीं करते। अभी ये देखें, यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, यहाँ पर लेबर कुछ दिन पहले लगी हुई थी, अभी भी स्ट्रक्चर खड़ा है। ये मस्जिद एक पुरानी मस्जिद है, उसको थोड़ा सा दोबारा रिपेयर किया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो सियाह जैसे आ रहे हैं और पाकिस्तान का बहुत बड़ा जो आप कहें रेवेन्यू का जो सीन है वो हमारी सेहत से हम इसको ओवरकम कर सकते हैं। और अपने जो आजकल डॉलर की बात हो रही है, तो जब तक सेहत नहीं होगी, जब तक हमारी एक्सपोर्ट मजबूत नहीं होगी या इंपोर्ट हमारी जो चीज़ें होती हैं या हम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ज़रूरी है डॉलर की जो मुस्तहकम करने के लिए और पाकिस्तान की करेंसी को आगे लेके जाने के लिए। तो उस जो एक इंडस्ट्री है पाकिस्तान में, बहुत बड़ी इंडस्ट्री सेहत की इंडस्ट्री है राना साहब, जिसे हमेशा इग्नोर किया गया है। जी बिल्कुल, ठीक है।
बिल्कुल। और हमारा जो आज की ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि जो पाकिस्तान में मौजूद या पाकिस्तान से बाहर जो व्यूवर्स हमें देखते हैं उनकी जो है ना कमेंट्स भी आते हैं, उनकी बेस्ट विशेस भी हमारी तरफ हमें आती हैं, तो उनके लिए स्पेशली ये चीज़ें बड़ी ही फैसिनेट करती हैं। ये चीज़ें जो हमारा सकाफती विरसा है, आज से 100 साल पहले जो कुछ था, जिस तरह की तर्ज़ तामीर थी, ये देखें कि जो जितने भी राना साहब दरवाज़े यहाँ पे रखे जी, गए हैं, जी, चाहे जी। वो मस्जिद है, चाहे वो कोई मंदिर है, चाहे वो कोई कुआं है या कोई महल है, उसके जो दरवाज़े हैं वो बड़े दरवाज़े रखे गए हैं। तो ये बड़े दरवाज़े जो है ना बड़े दिल के, खुले दिल की अलामत है। तो बिल्कुल। बर सग़ीर की जो मेहमान नवाज़ी है वो वैसे भी बड़ी मशहूर है, और लाहौरियों की जो मेहमान नवाज़ी है वो पूरी दुनिया में किसी से ढकी छुपी नहीं है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो लाहौरियों के खाबे तो वैसे ही बड़े मशहूर हैं, लेकिन आज हम आपको खाबे नहीं सिर्फ हिस्टोरिकल प्लेस की तरफ लेके चले हैं। तो बड़ा ज़रूरी था कि मैं आपको थोड़ी सी ये मालूमात देता। ये देखें, ये वो मेरे ख्याल में वज़ू का पॉइंट बनाया गया, यहाँ पे लोग वज़ू करते हैं, इस मस्जिद में जाके फिर नमाज अदा करते हैं, और मौसम भी थोड़ा अच्छा हो रहा है, इस वजह से जो वीडियो का व्यू है वो बड़ा ही अच्छा आ रहा है। तो इसको जो मज़ीद जो इसकी जो तामीर है उसको साथ साथ रिपेयर किया जाए, यहाँ पर मज़ीद दरख्त लगाए जाएँ, और ये अनार का जो पौधा है, अनारकली की भी स्टोरियाँ लाहौर से जुड़ी हुई हैं, तो उसके बारे में भाई आपको बताते हैं। ये जी राना साहब, आप क्या कहेंगे? जी, बिल्कुल। ये हम जब दाखिल होते हैं तो इसमें एक पुराना दरबार भी मौजूद है। वहाँ पर लोगों का आना जाना था। ये बाहर की तरफ भी कब्र मौजूद है, और कब्र के बाद नीचे एक तहखाना भी था। उनसे रिक्वेस्ट करने के बाद फिर हम अंदर गए और उसकी भी बाकायदा वीडियो बनाई। और ये बुज़ुर्ग भी उसी वक्त के हैं, और ये शाह साहब थे, और उस वक्त इसहाक साहब थे, इनका नाम था, और ये बुज़ुर्ग थे। और ये जो इसके ऊपर जो बिल्डिंग है, ये देखिए, इसमें अपने हाथों से ये लोगों ने उस वक्त जो मुग़लिया दौर था, वज़ीर ख़ान साहब ने, जो हम मारूम है, जो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, उनकी निशानी आज भी मौजूद हैं, और उस वक़्त इन लोगों ने हाथों से बनाया है। ये देखिए, ये कब्र का बाहर का हिस्सा है। यहाँ पर लोग आके फातिहा ख़वानी करते हैं, दुआएं मांगते हैं, बुज़ुर्ग के दर्जात बुलंद करने के लिए दुआएं मांगते हैं। और इसी तरह ये बाहर, यहाँ पर जब हम पहुँचे हैं तो कुछ बाहर के लोग, अंग्रेज़ लोग भी यहाँ आए हुए थे, और अगर इसकी देखभाल चलती रहे तो आने वाले 1000 साल भी इस बिल्डिंग को कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अगर हमारे मुल्क ने इन चीज़ों की हिफाजत की तो ये कायम और दायम रहेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर ये, जैसा कि आप सूरत हाल कुछ समी भाई ने आपके सामने बताई हैं, कि मेरे ख्याल में ये भी वो एक आदमी वहाँ बता रहा था कि काफ़ी अरसे से लगे हुए हैं लेकिन काम नहीं हो रहा वहाँ पर। तो काम ना होने की वजह से बिल्डिंग का नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। और आज भी माशाल्लाह उसी तरह, ये देखिए आपके सामने पौधे हैं, लोगों का आना जाना लगा हुआ है, दूसरे मुल्कों से लोग यहाँ आते हैं। सियाह के आने से हमारे मुल्क में तरक्की होती है। तो ये देखिए, आपके सामने हम आए हैं, ये बुज़ुर्ग का, ये नीचे सीढ़ियाँ उतरने की जगह है, और हमने वहाँ एक दोस्त बैठे थे, बुज़ुर्ग से पूछने के बाद हम अंदर दाखिल हुए, और वहाँ पर भी हमने फातिहा ख़वानी की। ये देखें, आप देखें कि जो इसकी छत बनी हुई है, ये आप इसकी उस वक़्त की ही खूबसूरती आपको नज़र आ रही है। लेकिन बदनसीबी के देखें, कुछ टुकड़े ऐसे हैं जो ख़राब हो चुके हैं, टूट चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। तो हमारी हुकूमत वक्त से ही रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि इन चीज़ों की हिफाजत करें, वरना 100 साल बाद ज़्यादा से ज़्यादा हमारी नस्लें जब आकर देखेंगी तो सिर्फ ये निशानियाँ रह जाएंगी। कुछ ऐसे मकामात हमारे मुल्क में मौजूद हैं जहाँ लोग बताते हैं कि यहाँ पर ये किला था, या मस्जिद हुआ करती थी, या यहाँ पर ये बहुत अच्छा मकाम था, एक पॉइंट था, तो वो ख़त्म हो चुके हैं, निशानियाँ रह चुकी हैं। हम ये नहीं चाहते कि हमारा जो वीडियो बनाकर आपको बताने का मकसद था कि 388 साल का मतलब ये है 4 सदी के बाद ही वो बिल्डिंग उसी तरह खड़ी है। अगर हम इसकी हिफाजत करेंगे तो और इतना वक्त गुजरने के बाद भी ये बिल्डिंग इसी तरह कायम और दायम रहेगी। और जब हम अंदर अब आपको दिखाएंगे, दरबार में जाते हैं, तो जो कब्र मुबारक है बुज़ुर्ग की, तो मेरे ख्याल में वो सभी भी तकरीबन 12 से 13 फुट की या 14 फुट की लंबी कब्र है। जी जी। और वहाँ पर लोगों का आना जाना लगा हुआ है, और मैंने बाकायदा उसकी वीडियो बनाई। जो आदमी वहाँ अंदर एक ड्यूटी पर मौजूद थे,
तो खैर उनको नहीं मालूम हो चुका कि जब मैंने वीडियो बनाई तो लास्ट टाइम उसने मुझे रोका, तो खैर मैंने फिर वीडियो बंद कर दी। लेकिन वहाँ ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, अंदर लोग और अंदर तय खाने में थे, पंखे भी चल रहे थे, वहाँ एसी भी लगा हुआ था, लेकिन वहाँ पर बहुत ठंडा निज़ाम था। और यानी कि गर्मी के दिन में, लेकिन वहाँ पे आज मौसम भी बहुत अच्छा है। आज जो वीडियो बन रही है माशाल्लाह मौसम भी बहुत अच्छा है, लेकिन अंदर भी जो सूरत हाल थी बहुत ठंडी थी और बहुत प्यारी थी। तो यह देखेंगे यानी कि आप दुनिया में जहाँ जहाँ बिल्डिंगें आप देखेंगे तो हमारे जो पाकिस्तान के हिस्से में जो बिल्डिंगें आई हैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, बहुत प्यारी हैं, और हमारे लोगों को और हमें भी और हमारे हुकूमत वक्त को भी इसकी हिफाजत करनी चाहिए। अगर इनके पास पैसे नहीं हैं तो इन जगहों पर टिकटें लगा दें। चलो मस्जिद में जाने का जो मसला है वहाँ पर तो हर आदमी ने नमाज़ पढ़ने के लिए जाना ही जाना है, लेकिन जो दूसरे और पॉइंट हैं हमारे वहाँ पर भी कुछ जगहों पर तो टिकटें लगी हुई हैं। लेकिन यहाँ पर जैसा कि बाहर की जगह थी और कुछ ऐसी जगह थी जहाँ पर मुफ्त आना जाना, अगर हुकूमत वक्त के पास जो मसाइल ज़्यादा है वसाइल कम है तो फिर वहाँ पर टिकट वगैरह लगा दें, तो उसकी एक अच्छी आमदनी होती है। अगर वो लगा दी जाए तो इंशाअल्लाह ताला उससे बहुत बेहतरी हो सकती है। तो ये हम नाज़रीन लाहौर वाले दोस्तों को, पूरी दुनिया के दोस्तों को दिखाना चाह रहे हैं कि हम तय खाना की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हमने बनाई इसलिए आराम आराम से है कि जो हाथ से काम हुआ है, जो मिस्त्रियों ने मज़दूरों ने उस वक्त काम किया है, वो आपको अंदाज़ा हो सके कितनी लागत लगी होगी और कितनी उस पर मेहनत हुई होगी। ये जो बुज़ुर्ग थे उनकी ये कब्र मुबारक है, और ये देखें आप तकरीबन 14-15 फुट या 13 फुट के करीब, ये शायद इससे भी ज़्यादा हो, 15 फुट के करीब ये कब्र हो। ये वहाँ पर एक दोस्त खड़े थे, उन्होंने वहाँ पर फातिहा खानी की, और उस वक्त दिन के जो थे वो 2 बजने वाले थे, यानी 1:55 हो चुके थे, और वहाँ पर बिजली का अच्छा निज़ाम था, एसी भी चल रहा था। ये पूरा एक माशाल्लाह, क्योंकि पाकिस्तान में अक्सर मकामात के अंदर, सिंध में, पंजाब में, बलूचिस्तान में, KPK में, सरहद में हमारे जो बुज़ुर्ग थे उनकी कब्रें मुबारक आज भी मौजूद हैं, और लोग वहाँ पर आते हैं, फातिहा खानी करते हैं, और लोग वहाँ पर आकर वहाँ पर बहुत सी जगहों पे उर्स भी होते हैं। खैर ये भी मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे ख्याल ये भी इनकी तारीख भी अभी नज़र आएगी। ये जो बुज़ुर्ग हैं वो जब अल्लाह को प्यारे हुए उनकी तारीख लिखी हुई थी, और ये सभी में मेरे ख्याल में इनकी जो तारीख है अभी ये हज़रत मीरान शाह साहब हैं, उनकी 1400 कुछ ऐसे ही या 1600 कुछ था। जी जी। हाँ जी, हाँ जी, ये थोड़ा सा मैं पढ़ नहीं सका उसको। तो माशाल्लाह ये बुज़ुर्ग वहाँ पर मुआविन थे, ये ड्यूटी पे मौजूद थे। इन्होंने हमें वीडियो बनाने से रोका, तो फिर मैंने वीडियो ख़त्म की, और बाद में जो मेन हमारा जो मरकज़ था, जो हमारा मस्जिद का हिस्सा था, उस मस्जिद में हम दाखिल होते हैं तो हकीकत में यह है कि यहाँ पर आकर इतनी ठंडा माहौल था और बहुत मज़ा आया। वहाँ पर लोग सोए हुए थे, बैठे थे। अब आप देखें कि इसकी दीवारें आपको बता रही हैं कि कितनी मेहनत से बनाया गया है। उसके आज भी जो पेंटिंग है, उसके जो कलर हैं, वो आज भी उसी तरह जो के तो मौजूद हैं। अगर हम इनकी हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये देखें जो मीनार है, मीनार बहुत बड़ा मीनार था, मेरे ख्याल में कम से कम अगर होगा तो जो छत से ऊपर 300-400 फुट के करीब ये मीनार होगा जो बना हुआ था अंदर। अब माशाल्लाह बिजली का निज़ाम भी था। उस वक़्त के दौर में भी जो बिजली नहीं थी तो वहाँ पर भी पंखों का आना जाना, हवा के हवाले से जो हाथ से के पंखे होते थे वो निज़ाम भी वहाँ लगा हुआ था। वहाँ पर बैठने की जगह भी थी और कुरान पाक में रखने की जगह भी है। वहाँ पर अभी आपको हम बताएंगे कि एक तख्त पड़ा है, उस तख्त की उम्र भी 400 साल है, यानी 388 साल पुराना है, और उस पर तहरीर लिखी हुई है कि इस पर कोई ना बैठे। तो खैर हमने उस तहरीर को पढ़ने के बाद सिर्फ उनकी तस्वीरें या वीडियो तो बनाई है, लेकिन उस तख्त पर हम नहीं बैठे। तो समी भाई ये देखें आपके सामने, यानी कि इसमें मुकम्मल सफ़े, उसकी दीवार आपको बता रही है कि कितनी बड़ी दीवार है और कितनी मोटी दीवार है, और इसकी बनाई और सारी सूरत हाल आपको नज़र आ रही है। और जुमे वाले दिन लोग बताते हैं यहाँ पर इतना शदीद रश होता है, तो यहाँ पर बैठने की जगह भी नहीं मिलती। लोग बाहर जो जहाँ सीढ़ियाँ थी वहाँ पर भी लोग नमाज़ पढ़ते हैं। और ये देखें आप, ये जो सामने गैप नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर लोग बैठा करते थे। लोग यहाँ पर आकर अब तो माशाल्लाह सोए भी थे, सोते भी हैं, क्योंकि एक ठंडी जगह है
اور جو پتہ نہیں اس وقت کس انداز سے کس طریقے سے مسجد بنائی گئی کہ آج بھی اس کے اندر دروازہ نہیں ہے، یہاں پر یہ کھلا ہے اور ٹھنڈا ماحول ہے، یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ بھی گرم جگہ ہو، ابس ہو، اس طرح کی صورتحال سمیع بھائی یہاں پر نہیں تھی۔ تو یہ مزید آپ سے سمیع بھائی بات کریں گے اس کی بنائی کے حوالے سے، آگے آپ کو تخت بھی دکھائیں گے سمیع بھائی، اور آگے آپ کو یہ سمیع بھائی سے بات کریں۔ جی دوست بالکل ایسے جی اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، رانا صاحب آپ بات کر رہے تھے کہ یہاں پہ دروازے نہیں رکھے گئے اور جو یہاں پہ ٹھنڈک ہے، تو کیونکہ اس دور میں بجلی کا کانسیپٹ نہیں تھا، تو ہم اس دور کے جو آرکیٹیکٹ تھے وہ بلڈنگ کو اس طرح سے ڈیزائن کرتے تھے تاکہ ہوا کسی بھی سمت سے چلے تو ہوا کی جو وینٹیلیشن کا سسٹم ہے وہ پراپر ہو اور ہوا یہاں سے گزر کر ماحول کو ٹھنڈا کر دے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہیں کہیں پہ ہمیں ایک نا لوہے کے بڑے بڑے ہکس سے نظر آ رہے ہیں۔ اس دور میں ہاتھ سے چلانے والے بڑے بڑے پنکھے یہاں پہ لگے ہوتے۔ پنکھے کیا تھے؟ وہ ایک رسی ہوتی تھی اور ایک کپڑے کا فلیپ سا ہوتا تھا جسے کھینچتے تھے تو ہوا چلتی تھی۔ تو اس دور میں مسجد جو ہے نا وہ ایک باقاعدہ جہاں پہ یہ نہیں تھا مسجد میں بیٹھ کے آپ صرف نماز ہی ادا کر سکیں، یہ نہیں تھا، بلکہ اس دور میں بڑے بڑے فیصلے، ایون دیٹ کے بادشاہ بھی اپنے بہت بڑے بڑے فیصلے آ کے مسجد میں کیا کرتے تھے۔ تو آج کل تو عجیب سی بات ہے کہ جی مسجد میں جو ہے نا آپ نے دنیاوی بات نہیں کرنی، دنیا کی بات نہیں کرنی، تو یہ مطلب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسا تھا کہ مسجد نبوی میں جنگوں سے لے کے لوگوں کے بچوں تک کے فیصلے مسجد نبوی میں کیے جاتے تھے، اور آج ہمیں آہستہ آہستہ مسجد سے دور کیا جا رہا ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پہ وہ جو ابھی بھائی بات کر رہے تھے کہ اس یہ ممبر ہے جہاں پہ بیٹھنا منع ہے، یہ ممبر جہاں پہ مسجد کا امام آ کے بیٹھتا ہے، وہ اپنی بات کرتا ہے، خطبہ دیتا ہے، تو یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے کسی بھی مسجد میں، تو یہ بڑی ہی اہم جگہ ہے۔ اس حوالے سے دیکھا جائے تو اگر جب ہم بلڈنگ کو دیکھتے ہیں، ایسی مسجدوں کو یا عمارتوں کو یا جو دروازے ہیں ان کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ جو مغلیہ سلطنت تھی، مسلمانوں کی وہ جو مغلیہ سلطنت تھی، ان کا جاہ و جلال جو ہے نا وہ ان عمارات سے جھلکتا ہے کہ ان کا جاہ و جلال کس لیول پر تھا۔ اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے نا ہمیں جس سے سبق سیکھنا چاہیے، وہ آپ سب نے پڑھے ہیں، مغلیہ سلطنت کے زوال کے اسباب کیا تھے۔ تو ہم نے یہ تو دیکھا ہے، پڑھا ہے، بتایا ہے دوستوں کو کہ مغلیہ دور میں مسلمانوں نے 700 سال ہندوستان پر حکومت کی، لیکن حکومت کرنے کے بعد ان کے جو زوال کے اسباب تھے وہ بڑے ہی میٹر کرتے ہیں رانا صاحب، وہ بڑے ہی اہم ہوتے ہیں کسی بھی قوم کے لیے، کسی بھی علاقے کے لوگوں کے لیے، کہ آخر اتنی بڑی سلطنت جو 700 سال تک قائم رہی اس کا زوال کیسے ہوا، اس سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے جو کہ ہم نے نہیں سیکھا۔ تو آج یہ جو عمارات لاہور میں یا پورے پاکستان میں بہت ساری موجود ہیں، یہ چیخ کر ہمیں بتاتی ہیں کہ مجھے سمجھو، مجھے پڑھو، میری ہسٹری کے بارے میں جانو، میں کیا تھی اور کیا ہوں اور کیا ہونے جا رہا ہے میرے ساتھ۔ تو ساری چیزیں یہ دیکھیں، یہاں پہ بڑے بڑے بادشاہوں جنہوں نے یہ مسجدیں تعمیر کروائی تو وہ آج دنیا سے کوچ کر چکے ہیں، لیکن یہ عمارات آج بھی موجود ہیں اور وہ داستانیں، وہ کہانیاں بیان کر رہی ہیں کہ کس طرح یہاں یہ مسجدیں، یہ بڑے بڑے ممبر اور یہ جو بلڈنگز کس طرح سے آباد تھیں۔ تو یہ بھائی میرے خیال میں یہ وہی تخت ہے جس کی آپ نے ابھی ناظرین سے بات کی ہے، یہ وہی ممبر ہے، ایسے ہی ہے نا؟ جی بالکل بالکل۔ تو اس حوالے سے جی آپ بتائیں پھر۔ جی سمیع بھائی بڑی مہربانی، شکریہ۔ تو یہ وہی تخت ہے جس کی عمر 388 سال ہو چکی ہے، اور اس پر جو ہے انہوں نے تحریر بھی کیا ہے کہ ادھر بیٹھ نہیں سکتے آپ لوگ، اور بیٹھ کر آپ تصویر بھی نہیں بنا سکتے۔ تو خیر ویڈیو بنانے کی اجازت تھی تو ہم نے اس کو فالو کیا، اور اس کو فالو کرنے میں ہم نے ویڈیو بنائی اور تخت کی مکمل ویڈیو بنائی ہے، اور وہاں پر آج بھی ماشاءاللہ تو یہ آج بھی اسی طرح اگر اس کی حفاظت چلتی رہی تو ماشاءاللہ یہ آنے والے وقت میں بھی تو اسی طرح قائم دائم رہے گا۔ تو اسی طرح جو باہر کے نظام ہیں، جو دوسرے معاملات ہیں، کنواں ہے اور دلی گیٹ ہے، دلی گیٹ سے سمیع بھی میں آپ کو بتانا چاہوں گا، آگے اعظم کلاتھ ہاؤس اور ہمارے ایک فدا بھائی ہیں، ان کے یہاں پر اگر آپ نے کپڑے کی خریداری کرنی ہو تو آپ آ سکتے ہیں، اور آپ آئیں تو اور ویلکم ہے آپ کو وہاں پر، اچھی انشاءاللہ
इसी के साथ हम आपसे चाहेंगे इजाज़त। समी इब्राहिम भाई और राना अबू बकर भाई आपसे इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। आपको मेरी तरफ से, समी भाई की तरफ से अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।